सभी को नमस्कार। It is extraordinary and unique program. शायद ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो पूरी तरह से हम सबको समाहित करता है। अंदाज़ा तो मुझे हो गया था जब महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, और इन दोनों अलंकरण की उनको आवश्यकता नहीं है। अपने आप में आनंदीबेन पटेल के यहाँ से मैसेज आया। आनंदीबेन पटेल जी डिफाइंस वुमन पावर, human resource exploitation for a positive cause. जब जब आपसे मुलाकात हुई है, कुछ सीखने को मिलता है और एक चुनौती भी मुझे मिलती है कि मेरी धर्मपत्नी ज़्यादा ताकतवर होती जाती है जब जब आपसे मुलाकात होती है। Friends, course of history is decided by leadership. The institution of governor is integrally connected with education. But the one and the only one that has passionately transformed it as chancellor both in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh is commendable. She is 24/7 mission mode, passion, execution to ensure educational institutions are nurtured so that they can blossom and flourish. और ये काम आसान नहीं है क्योंकि मैं भी 3 साल तक पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहा हूँ। But then also I sought from her guidance as governor, and she was extremely prompt on telephone itself to invite my attention to a judgment of a high court. ये कमिटमेंट आपका एजुकेशन के लिए है। कारण एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेटिव मैकेनिज्म टू चेंज द सोसाइटी फॉर बेटर. Education alone can help us realize the preamble of Indian Constitution. Education brings about equality and education cuts into inequities. तो शिक्षा में आप किसी के मददगार होते हो. If you handhold someone so that he or she can pursue education, that's divinity expressed. I am therefore grateful to the Honorable Governor for making available this opportunity to me to share my thoughts. Sri Sunil Kumar Gupta, alumnus of IIT Kanpur, one of the senior-most bureaucrats of the nation, 1987 batch Indian Administrative Service, is himself a product of education. And that is reflected in the couple's 2 sons. Education is much beyond knowledge or degree.
proper education aligns you with your cultural roots, modesty, sublimity. It cuts into arrogance. We had the good fortune of some taking to the floor today. I can imagine the sentiments of all of you. Amitabh Shah, he lucidly described himself. I was slightly apprehensive, to be honest, because when anyone makes a description of oneself, I am normally on guard. But then I give him the credit. All this was relatable to the onerous duties he and the organization is performing. And this was demonstrated by the two succeeding speakers, the girls. Samiksha Dubey. What a journey. I remember my own days. If I had not got a scholarship for Sainik School, I don't know where I would have been. I recall the pains she went, and I see what me and Dr. Sudesh Dhankar did in our early career, in spite of talent being there, either side. If you ignite your Sigdi by call after selling newspaper Raddi, you can imagine the difficulties faced. And look at the fire she has in herself. I am amazed. She has been unable to handhold many others because of a timely situation. Someone came forward. That exemplifies our civilizational ethos, depth of our culture. Second, Ramani Vidisha. Now, both of them share one thing in common: academic brilliance in the face of difficult situation, negotiating on a terrain which was not soothing. I recollect my own days when I traveled 5 kilometers for class 6 education from the village before availing a scholarship to Sainik School. We used to return when the sun was at peak. Me not alone. Many of us from the village, because our village didn't have class 6 education. And wherever we would see gobar, we will put our feet there so that we get some respite. Hats off to the two girls. You are not individuals. Manika Ghoshji very briefly expressed her sentiments and made us all sentimental. But I am not in the least surprised, because when I interacted for the first time with Anandiben Patelji, she gave a book. That book was authored by her at a time when she was not in politics, where she had to play a role of reprimanding effectively the delinquent.
I gave that book to my wife. Anandi Ben is miles ahead. But I am proud to share with you, my wife is on the same route. Only last fortnight, and I'm making this revolution only to buttress the point. 8 girls from my village could secure admission in the highly competitive environment of Delhi. And all 8 were not inclined to join on account of handicaps, fiscal and otherwise. She facilitated. All of them are admitted to colleges in Delhi University, prestigious colleges, undertaking that she would handhold them. This is the spirit, a part of it from Anandiben Patel ji. Her discourse was revealing what we should be doing. And therefore, I congratulate the trustees. One, Anar Jayesh Patel. Two names हैं, एक क्यों ताली क्यों? Anar and Jayesh. They are not one name, they are two names. Mr. Sanjay Rai, and founder's reference I have given. So I welcome each of you because this will generate a connect for life. This will become a mission where me and my wife would also be associated in some measure. Sri Ramcharitmanas, उत्तराखंड, कौन सा देश है जिसके पास 5000 साल की संस्कृति है? हमारी विरासत है. क्या कहा गया? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई. दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है. It doesn't require volume of fiscal resource. It requires intent. Mr. Gupta will bear me out that during COVID situation, challenging for the entire humanity, we recognize those who handheld others by providing food. People did it in thousands, but we saluted those who hardly had food for themselves. Still they provided meal for one or two. Went on record. It doesn't matter how much you can do. What matters is, are you taking the first step of doing and contributing? इसीलिए रामचरितमानस उत्तराखंड. आगे देखिए, we are a land of sages. People come to our land in search of peace, to get happiness, to get enlightenment. परोपकाराय संतः विभूतयः. संतों की, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए ही होती है.
संत परोपकार और जीव सेवा के लिए जन्म लेते हैं। आई विल गिव यू एन इलस्ट्रेशन। गर्मी का महीना था। एक साधु ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। गृहिणी ने कहा कि अंदर आइए। जलपान हुआ। आखिर में हुआ कि मैं आपको कुछ बांध कर दे देती हूं ताकि आगे का हो। उसने कहा नहीं, आपने इतना कर दिया तो समाज में एक बहुत बड़ा आंदोलन आएगा, आगे भी कोई मेरा ध्यान देगा। मैं ये सुरक्षा लेकर चलूंगा कि मेरे पास भोजन है, तो मैं निर्मल तरीके से मेरी भावना को आगे नहीं कर पाऊंगा। एक किस्सा है, एक सेठ जी खरबपति एक पंडित के पास गए और बोले, पंडित जी 8 पीढ़ी का तो काम हो गया है, इतना धन मैंने संचित कर दिया है कि 8 पीढ़ी तक तो दिक्कत नहीं आएगी, पर 9वीं पीढ़ी में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आप बताओ मैं क्या करूं कि उस पीढ़ी को भी सुरक्षित कर दूं। उसी समय एक सिद्धा लेकर आया। सिद्धा जानते हैं आप, पंडितों को सीधा देते हैं। तो उसने कहा, पंडिताइन सिद्धो आयो है। तो पंडिताइन बोली, आपने तो एक आगो, इन्हें कह दे दूसरे घर दे दे। मतलब पंडिताइन श्याम की नहीं सोच रही थी और वो 9वीं पीढ़ी की सोच रहा था। ये एक अपने आप में सोचनीय बात है। आनंदीबेन पटेल जी ने शिक्षा का बात दिया और महिलाओं की शिक्षा पर चर्चा की। आप देखिए, एक महिला थी, महिला बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी, बीमार थी, अंधी थी, इकलौता बेटा बेरोजगार था, इकलौते बेटे की शादी भी नहीं हो रही थी। इतनी चुनौतियां उसके सामने थी कि ईश्वर प्रकट हुए और कहा कि एक वचन मांगो। क्या मांगती? स्वस्थ हो जाऊं, आंखें मिल जाएं, बुढ़ापे का दुख नहीं रहे, बेटे को नौकरी मिल जाए, बेटे की शादी हो जाए। फिर उसको ध्यान में आया कि मुझे तो एक ही बात मांगनी है। उसने कहा, प्रभु कृपा करो, सोने की थाली में पोते को हंसता खेलता दिखा दो। वो सोने की थाली में पोता हंसता खेलता दिखे, वो शिक्षा है। दैट इज एजुकेशन। विमेन एजुकेशन विल बी गेम चेंजर, और ये हो रहा है। यहां भी मैंने देखा 1/3 हैं सूदिंग है। आपका जैसे है संस्था अनस्टॉपेबल, राइज ऑफ भारत इज अनस्टॉपेबल। Youth is the most vital stakeholders in democratic governance and development journey of Bharat. When I was at a college in Jaipur day before, it was education and women in Viksit Bharat. I said, education and women are the 2 wheels of a chariot that will drive our journey successfully for Viksit Bharat.
taken together, they are fuel to that engine that will take us to destination at 2047. अब आज के दिन संस्थाएं काम कर रही हैं, पर 10 साल में सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है, अकल्पनीय काम किया है। आनंदी बहन जी ने मेरे से ज़्यादा देखा है, पर मैंने भी 90 के दशक में शासन को देखा है, लोकसभा सदस्य की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से। जो मैं अब देख रहा हूं नवयुवकों के लिए, वो उस समय मेरे लिए सपना भी नहीं हो सकता था, अकल्पनीय था, हिम्मत नहीं थी कि इतना सपना करूं। आज के दिन आपको समानता का अधिकार प्राप्त है, कोई प्रिविलेज पे डिग्री नहीं है। आज के दिन आपका अपॉर्चुनिटी बास्केट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, संकट एक है कि उसकी सफल जानकारी नहीं हो पा रही है। आज के नवयुवकों नवयुवतियों को ये पता लगाने की आवश्यकता है कि स्पेस इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, उनमें कितनी आवश्यकता है उनकी। सरकारी नौकरी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, रैट रेस है, उनको मैं एक ही बात कहता हूं कि दुनिया की शीर्ष संस्थाएं आज के दिन जब कहती हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, कि इंडिया इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं कह रही है, सरकारी नौकरी उनके रडार पर नहीं है। इसका मतलब बहुत कुछ है। आप जो काम कर रहे हैं, आप हर हालत में साधुवाद के पात्र हैं। मैं महंत व्यास जी के कथन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। परोपकार है, पुण्याय है, पापाय है, परपीड़ितम। अब क्या है कि दूसरों को अपने पीड़ा पहुंचाएं, ऐसा क्यों करते हैं? और ये पीड़ा हम कई तरीके से करते हैं। देश बदल रहा है, अपना कूड़ा दूसरे के घर के सामने डालना ये कोई छोटी चीज नहीं है, व्यापक थी, अब खत्म हो रही है। सड़क पर हमारा आचरण दूसरे को पीड़ित करने का है। मतलब हर गतिविधि में देखिए कि जिसके पास धन बल है, वो धन को दिखाकर दूसरे को पीड़ित करता है। उसको इस बात का बोध नहीं है कि ऐसा करने से वो धरती पर बोझ बना हुआ है। ये समझ की बात है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है हमें संस्कार मिले, संस्कारों का सर्जन हो। आज के नवयुवकों को भारत के निर्माण में भूमिका निभानी है। मेरा तो ये मानना है कि जो हवन हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी आहुति युवाओं की है, अच्छे संगठनों की है, जो निष्ठावान तरीके से काम को आगे बढ़ाएं। आपने हरेक का मैंने परिचय देखा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्हाट अ कन्वर्जेंस ऑफ पीपल फ्रॉम वेराइड बैकग्राउंड्स established in their profession or organization have come together only with one common thread, and common thread is to give back to the society. जिम्मेवारी पद पर जो लोग हैं और हर स्तर पर है, क्योंकि भारत जैसा
प्रजातंत्र दुनिया में आज कहीं नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से भारत का प्रजातंत्र गांव से लेकर केंद्र तक है। इसमें अब एक ही आवश्यकता है कि हम हमारे सांस्कृतिक धुरी को समझें, सांस्कृतिक आधार को जानें, राष्ट्रीयता में विश्वास रखें, भारतीयता के लिए गर्व करें, तभी ये हो पाएगा। आप जितने यहां बैठे हैं, आप 100 साल का इतिहास देख लीजिए, पहले जाएंगे तो पता लगेगा। इतिहास में नाम उनका दर्ज हुआ है जिन्होंने जनसेवा की है। बहुत कम लोग हैं जिनका इतिहास में इसलिए नाम है कि उसके पास धन था, शायद ही कोई नहीं है। यदि किसी का है तो भी इसलिए है कि उन्होंने देश के लिए काम किया था। तो जो संतुष्टि मिलती है उसको ताकत देने में जिसमें ताकत नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। सुनील गुप्ता जी ने एक माँ बाप की पीड़ा समझकर उनका जो चाइल्ड है वो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, और पता लगा कि एक टेक्नोलॉजी आई है जो उसको थोड़ा सक्षम बना सकती है। जब उसको देखा हमने बिना उस यंत्र के, तो भी चेहरे पर चमक थी, पर हम दुखी थे कि न सुन पा रहे न बोल पा रही। वो लगा, फिर उसका वीडियो देखा। ऐसी अनुभूति बहुत कम को मिलती है। ये एक पिलग्रिमेज के बराबर है। यदि अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम है, क्यों है? सेवा भाव के लिए। कोविड में जो आगे आए, खतरा मोल लिया ताकि हम मदद कर पाए। यही तो भाव है, ये तो भारतीयता है, ये तो हमारे राष्ट्र की पहचान है। आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वेरी पायस movement, and there is need for this movement to be ideated by others, and there are people, I am sure, who will follow it. I from today, Anandiman Patel ji is associated with them along with Dr. Suresh. Thank you so much. I am grateful for your time and patience.